آج ہم کلاس شروع کرتے ہیں۔ نبی صلی جی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو پھر مدینے کے حالات کیسے تھے؟ حضرت میں مدینے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں معذرت کے ساتھ آپ کو جی بیچ جی میں۔ جی جی کل میں نے بھی آن لائن عید میلاد النبی کی تقریب رکھی تھی، اچھا اور اس میں نے جو ٹاپک رکھا تھا عید میلاد النبی اور سائنس، جی ماشاء اللہ، وہاں سے میں نے تھوڑا بتایا تھا، بس یہ شیئر کرنا چاہتی چلے تھی۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ تو نبی علیہ السلام جب مدینے میں تشریف لائے تو مدینے میں اوس اور خزرج یہ دو مشرک قبیلے تھے، اور 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ اوس اور خزرج جو مشرک قبائل تھے اس میں سے مسلمان کافی ہو گئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور کچھ ایسے تھے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ یہودیوں میں سے بہت کم ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو مکے سے آئے تھے، یا پہلے آپ کے آئے آپ کے بعد میں آئے، تقریباً کوئی 45 سے 50 صحابہ کرام علیہ رضوان تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مواخات رکھا، یعنی کہ ان کو بھائی بھائی بنایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو مکہ چھوڑ کے آئے تھے ان کے پاس کوئی جائیدادیں نہیں تھی، کوئی مکان نہیں تھے، رہنے کی جگہ نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھائی بنایا تاکہ ان کو مکان دیں رہائش کے لیے۔ تو تقریباً سب کو اپنے بھائی بنا دیا۔ عبد الرحمن بن عوف صحابی تھے، مکے سے آئے، ان کو سعید بن زید سعید صحابی تھے، ان سے آپ علیہ السلام نے ان کو بھائی چارہ بنا دیا۔ تو انہوں نے کہا جی آپ، میرا مال بھی آپ کا آدھا ہے، اگر آپ چاہیں تو میری 2 بیویاں ہیں اور میں ایک کو طلاق دوں اور آپ اس سے شادی کریں۔ آپ نے فرمایا شکریہ، مہربانی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ مجھے صرف یہ دکھا دیں کہ بازار کس طرف ہے تاکہ میں اپنا تجارتی کام جو ہے وہ شروع کروں۔ تو انہوں نے بتایا کہ فلاں جگہ بازار ہے، آپ گئے، پنیر بیچا تھوڑا بہت، پھر اگلے دن پنیر بیچا، محنت کرتے گئے، اور 2-4 مہینوں میں الحمدللہ پھر انہوں نے اچھا اپنے آپ کو اسٹیبل کر لیا، اور اس کے بعد انہوں نے شادی بھی کر لی۔ نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں آئے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے جسم پر کپڑوں پر کچھ نشانات تھے، تو فرمایا کہ یعنی کہ وہ لپسٹک وغیرہ جو اس زمانے میں جو بھی ہے، تو شادی کی؟ انہوں نے کہا جی ہاں شادی کی ہے۔ تو فرمایا پھر آپ نے حق مہر دیا؟ انہوں نے کہا جی حق مہر دیا ہے۔ تو فرمایا کہ ولیمہ بھی کرو، یہ آپ علیہ السلام نے ان کو تعلیم دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، عرض کیا رسول اللہ سب کو بھائی بھائی بنا دیا، تو میں، آپ علیہ السلام فرمایا تم میرے بھائی ہو۔ تو آپ علیہ السلام ان کو اپنا مواخات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کیا۔ تو یہ بہت بڑی حکمت عملی تھی آپ علیہ السلام کی کہ جو مسلمان جو وہاں سے آئے تھے، سفر کر کے آئے تھے، ان کے پاس کوئی گھر نہیں تھا، کوئی تجارت نہیں تھی، تو یہاں کے مسلمان جو ہے ان کے ساتھ ہوں گے، اور انصار نے بہت کھلے دل سے ان کو تسلیم کیا، اور ان کو ہر چیز ان کو دی، اور یہاں تک کہ کہا کہ تم گھروں میں رہو، کھیتوں میں ہم کام کریں گے اور اس میں سے آدھا تمہارا ہوگا۔ تو مہاجرین نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، ہم بھی اپنی محنت کریں گے، ہم بھی تجارت کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس تبلیغ سے اور تعلیم سے دونوں کو بہت زیادہ محبت اور پیار کا صلہ ملا۔ باقی رہے قبائل جو تھے، یہود کے قبائل تھے، ان کے ساتھ بھی آپ علیہ السلام نے معاہدہ کیا، اسے کہتے ہیں میثاق مدینہ، جس میں یہ تھا کہ ہم آپس میں لڑیں گے نہیں، جھگڑا نہیں کریں گے، اور جو دینی معاملات ہیں اپنے اپنے حساب سے ہم چلائیں گے، کوئی کسی کا جو دشمن نہیں بنے گا۔ اگر کوئی مسجد نبی پر یا مدینے پر حملہ کرے گا تو ہم اس کے مل کے جو ہے نا اس کا دفاع کریں گے۔ اس میں سے کوئی 7-8 شرائط تھے، ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ خون بہا اور فدیہ کا طریقہ سابقہ قائم رہے گا، اگر کسی کو کسی نے قتل کر دیا تو وہ حساب کا جو 100 اونٹ دیے جاتے ہیں وہ دیے جائیں گے۔ ہر 2 فریق کو مذہبی آزادی ہوگی، ایک دوسرے کے دین سے تعارض نہیں کریں گے، یعنی یہودی اپنے دین میں کام کر رہے ہیں اور ہم اپنے۔ ہر 2 فریق ایک دوسرے کے خیر خواہ رہیں گے، لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ ہر ایک فریق کو کسی سے لڑائی پیش آئے تو دوسرا اس کی مدد کرے گا، یہ بھی میثاق میں شامل تھا۔ پھر یہ اس کا آگے پھر اثر کیا پڑتا ہے، جب یہودیوں نے اس عہد کو توڑا تو پھر ان کے ساتھ جنگ کی گئی۔ تو ایک یہ تھا۔ دوسرا تھا کہ اگر فریقین میں ایسا اختلاف پیدا ہو جائے کہ جس سے فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ خدا اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر چھوڑ دیا جائے۔ کوئی فریق قریش اور ان کے معاونین کو امان نہ دے گا، جو قریش کے لوگ ہیں نا، جو مکے والے، وہ جب آئیں گے تو ان کو امان نہیں دے گا۔ اگر کوئی دشمن یسر پر حملہ آور ہو
तो हर दो फरीक मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। ये सब यानी मदीने पर बाहर से कोई बंदा हमला करेगा तो ये दोनों मुसलमान भी यहूदी भी मिल के उसका जवाब देंगे। फिर ये जंग खैबर में इन्होंने जो गद्दारी की थी यहूदियों ने, तो फिर उनके साथ फिर जंग की मुसलमानों ने। अगर एक फरीक किसी से सुलह करेगा तो इस मुसालहत में दूसरा फरीक भी शामिल होगा। एक फरीक ने सुलह कर दी, समझो कि दूसरा भी इसमें शामिल होगा, मगर मजहबी लड़ाई इससे मुस्तस्ना होगी। तो मजहबी लड़ाई का अलग एक होगा। तो ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है वो उनके साथ मुआहिदा किया, जिससे इर्द गिर्द के कबाइल में इत्मीनान सुकून आ गया। लेकिन कुरैश अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। जो मक्के थे वाले थे, उन्होंने मदीने में जो मुशरिक लोग रहते थे उनको उभारा कि तुम इनको निकालो यहाँ से, इनसे लड़ाई करो, इनसे झगड़ो। मदीने में एक शख्स था, मुशरिक था, बाद में मुसलमान हुआ, लेकिन वो मुसलमान सही नहीं हुआ, मुनाफिक रहा। उसका नाम था अब्दुल्ला बिन उबई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मदीने आने से पहले औस और खजरज ये दोनों कबीले जो थे ये मुत्तफिक थे कि अब्दुल्ला बिन उबई को हमने सरदार बनाना है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आए तो सारों की तवज्जो नबी अलैहिस्सलाम की तरफ हो गई, मुसलमान हो गए, उनकी सरदारी खतरे में पड़ गई, बल्कि वो सरदारी ना बने। तो उन्हें इस चीज की बहुत ज्यादा तकलीफ थी। तो उसने शुरू में बहुत ज्यादा लड़ाई करने की कोशिश की, और बाद में जब मुसलमान भी हुआ तो उसमें भी उसने मुनाफिकत डट के की, कोई कसर नहीं छोड़ी मुसलमानों के अंदर में कोई खोखला करने की, नुकसान पहुंचाने की। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को इसकी शरारतों से महफूज फरमाया। तो बाहर से खटका लगा रहता था, मुशरिकीन कहीं ना कहीं से तरीके से आते थे, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर पहरेदार बिठाया करते थे। और एक मरतबा बुखारी में हदीस है कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आज कौन पहरा देगा, मैं चाहता हूँ कोई पहरा दे। तो हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि साद बिन अबी वकास तशरीफ लाए और दरवाजा खटखटाया कि मैं आया हूँ। तो पूछा गया कि आप किस लिए आए? उन्होंने कहा जी मेरा ख्याल है, मेरा दिल किया कि मैं नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चौकीदारी करूं। उधर से आप अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश हुई, उससे पहले वो निकल पड़े, आप अलैहिस्सलाम ने कहीं कहा नहीं था, तो उन्होंने चौकीदारी की। और एक मरतबा ऐसा भी हुआ कि एक लड़ाई का समा पैदा हो गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर निकले, साहबा भी परेशान होकर निकले कि शायद कोई हमला हो गया है। तो आप अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी का घोड़ा लेके वापस आया, फरमाया जो शरारतें थी वो बाहर भाग गई और अमन आ गया। यहाँ तक कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह ने जब कुरान पाक की इस आयत में फरमाया कि अल्लाह अब लोगों से आपकी हिफाजत फरमाएगा, उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जो हिसार थी, जो चौकीदार, जो साहबा चौकीदारी करते थे, हिफाजत के लिए दस्ते होते थे, वो अपने अपने घरों में तशरीफ ले गए। तो ये कुफार की तरफ से खटका लगा रहता था, और उनकी तरफ से पूरी कोशिश होती थी कि किसी तरह से आप अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाया जाए। इसी दौरान जो यहूद थे वो ताना देते थे कि मुसलमान हर बात में तो हमारी मुखालफत करते हैं, लेकिन किबले हमारे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। उस वक्त भी मुसलमान किबला बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि हमारा किबला जो है बैतुल्लाह बने। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक कबीले में नमाज पढ़ने गए, वहां जोहर की नमाज थी गालिबन। तीसरी रकात में अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाजिल फरमाई, सयक़ुलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम व कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन नास व यक़ूल रसूलु अलैकुम शहीदा क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस समा। यहाँ असल में कि हम देख रहे हैं कि आप आसमान की तरफ चेहरा उठा रहे हैं, फवल्ली वजह के शतर मस्जिद हराम, तो आप जहां चाहें जो है अपना चेहरा फेर दें, लेकिन आपकी ख्वाहिश थी मस्जिद हराम की तरफ, तो अल्लाह ने फरमाया फवल्ली वजह का शतर मस्जिद हराम, अब आप अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेरिए। तो नमाज ही में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम की तरफ जो है वो मुंह कर दिया। 2 रकातें फिर इधर मुंह करके नमाज पढ़ी। तो उस मस्जिद को मस्जिद किबलतैन कहते हैं। तो वो इस तरह था नबी मदीने में जब आप जाएंगे तो इस तरफ आप मुंह करके फलस्तीन की तरफ करते थे, तो फौरन आपने इधर मुंह करके आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अगली 2 रकातें जो है वो अदा फरमाई।
मस्जिद क़िबलतैन। तो जब हम गए थे वहाँ, तो वहाँ एक साथी ने बताया कि ये एक तजर्बा है कि जिस तरह एक किबले से दूसरे किबले की तरफ मुसलमान हुए नबी अलैहिस्सलाम के वसीले से, इसी तरह यहाँ जो भी कोई आए और दुआ करे, इंशाल्लाह उसके हालात भी ऐसे बदल जाएंगे, बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। तो वहाँ जो आपकी तमन्ना है, ख्वाहिश है, आप वहाँ 2 रकात नफल पढ़ें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, तो आपके लिए दुआ कबूल की जाएगी। तो वहाँ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ी, वहाँ दुआ की। तो आप में आपके लिए क्योंकि जान पहचान नहीं थी, तो ये नवाज अंसारी साहब मेरे पुराने दोस्त हैं, इनके लिए मुझे भी याद है कि वहाँ मैंने दुआ की थी, और दोस्तों को भी की थी जो मतलब मेरे उसमें थे, अपने लिए भी की। तो बताने का मकसद ये कि आप जाएं तो अपने लिए दुआ करें, दोस्तों के लिए दुआ करें। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वहाँ जो है वो ये किबले की जो आपकी ख्वाहिश थी पूरी थी। तकरीबन 16 से 17 माह आप अलैहिस्सलाम और सहाबा ने मस्जिद बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके जो है वो नमाज पढ़ी। उसके बाद ये किबला चेंज हुआ, तो उसमें अल्लाह ने पूरी वजाहत फरमाई कि लोग कहेंगे कि क्यों किबला, सयक़ूलु सुफ़हा, अनकरीब बेवकूफ़ कहेंगे कि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती, किस चीज़ ने उनको उस किबले से रोका। और फिर आगे फिर एक और मसला हुआ कि जो पहले जिन्होंने मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी, उनकी नमाजों का क्या बनेगा। तो इसी आयत में अल्लाह ने फरमाया कि उनके अमाल ज़ाया नहीं होंगे। किबला चेंज हुआ, उसके बाद ये पहली हिजरी में चल रहा है, दूसरी हिजरी, और साथ ही जो है वो अजान का मसला हुआ कि अजान कैसे दी जाए। आप अलैहिस्सलाम ने मशवरा लिया सहाबा कराम अलैहिर्रिज़वान से कि अजान कैसे दी जाए। लोगों को मस्जिद नबी तामीर हो गई, उसके बाद लोगों को बुलाया कैसे जाए। तो किसी ने कहा कि आग जलाई जाए और उस आग को रोशन होने के साथ जो है वो सहाबा आ जाएं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, ये तो मजूस का तरीका है, ये नहीं। तो किसी ने कहा कि नगारा बजाया जाए, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, ये ईसाइयों का तरीका है, ये नहीं। किसी ने कहा तूतड़ी बजाई जाए, तो आपने फरमाया यहूदियों का तरीका है, ऐसा नहीं। हजरत उमर ने कहा कि ऐलान किया जाए, एक जाए बंदा गलियों में, क्या क्या अभी नमाज का टाइम हो गया है। फरमाया ठीक है। फिर हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया कि आप जाएं, तो वो अस्सलातु जामिया कहते थे, अस्सलातु जामिया। फिर अगले दिन एक सहाबी को ख्वाब में एक फरिश्ते ने अजान सिखाई। फरिश्ता अजान पढ़ रहा, पीछे सहाबी ने दोहराई। उसने आके आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि मैंने ख्वाब देखा है कि इस तरह के अल्फाज मुझे सिखाए गए हैं। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाए ये है अजान है, तुम बिलाल को सिखाओ, बताओ उसकी आवाज़ ज़रा ऊंची है। तो बिलाल को उन्होंने सिखाया, तो पीछे से तो उमर भी आ गए। तो अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने भी इस तरह का ख्वाब देखा है। तो मजीद तायद हो गई। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब तुम अजान इस तरह दिया करो। और फिर जब बिलाल अजान दी और उसके बाद नमाज के लिए आप अलैहिस्सलाम को उठाने के लिए आए, तो कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा जुमला है, इसको तुमने फजर की जो अजान है उसमें क्या कर लें, आप इसको शामिल कर लें। तो अजान देने की बहुत फजीलत है, अजान का जवाब देने की बहुत फजीलत है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो जब अजान आए, तो जिस तरह मुअज्जिन कहता है तुम इसी तरह कहते जाओ, और जहाँ वो हय्य अल सलाह कह रहा है, हय्य अल फलाह कह रहा है, तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अज़ान मुकम्मल होने के बाद दुरूद पाक पढ़ो, उसके बाद मेरे लिए दुआ वसीला करो, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा, ये दुआ करो, तो मैं क़यामत के दिन तुम्हारा शफी होंगे, मेरी शफाअत तुम्हारे लिए होगी। तो आपने और हमने जब अजान सुननी है, गौर से सुननी है, जवाब देना है, उसके बाद दुरूद पढ़ना है, और उसके बाद ये दुआ पढ़नी है। और एक हदीस है, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अजान और दुआ के नमाज जमात के करीब बीच में दुआ कबूल होती है। तो अजान सुन के जवाब दे के उसके बाद दुरूद पाक पढ़ें, उसके बाद अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा ये जो है वो पढ़ें। उसके बाद अपने लिए दुआ करें, अपने भाइयों के लिए, अपने असाज़ा के लिए दुआ करें। दुआ मोमिन का हथियार है, अल्लाह तबारक व तआला आसानियाँ पैदा फरमाता है। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक ऐसी दुआ आप अलैहिस्सलाम ने सिखाई कि ये दुआ जो बंदा पढ़ेगा उसने अपनी दुनिया भी बेहतर बना ली और आखिरत भी बेहतर बना ली। दुआ है अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़, अल्लाह मुझ पर रहम फरमा और मेरी बख्शिश फरमा, और मुझे आफियत में रख मुश्किलात से, और मुझे रिज़्क़ अता फरमा।
جس نے یہ دعا مانگی اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، اس نے دنیا اور آخرت جو ہے وہ مانگ لی۔ تو جب بھی موقع ملے آپ ضرور کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ جی احتشام صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے بتایا کہ جو مسجد ذوالقبلتین میں جب قبلہ بدلا اس سے جی پہلے اس مہینے بیت المقدس کی طرف نماز وہ پڑھتے رہتے، تو جب جی مکہ میں تھے تب مسلمان کس طرف کر کے نماز پڑھتے تھے وہ؟ جی، جب مسلمان مکہ میں تھے اس وقت بھی مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب مکہ میں تھے اس وقت بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کرتے تھے کہ آپ قبلہ ہوتا تھا اس انداز سے پیچھے نماز پڑھتے تھے کہ منہ قبلے کی طرف بھی ہو اور ساتھ میں بیت المقدس کی طرف ہو، لیکن قبلہ اس وقت جو تھا وہ بیت المقدس ہی تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کے بعد پھر تحویل، اس کو کہتے ہیں تحویل قبلہ، قبلے کی چینجنگ ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی، اس کے احکام آئے، اور پھر اللہ نے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی کہ اب تم جہاد کر سکتے۔ پہلے منع تھا کہ ابھی آپ نے اسٹے کرنا ہے، ابھی آپ نے خاموش رہنا ہے۔ اس کے بعد جہاد کی اجازت ہو گئی، تو آپ علیہ السلام، ایک تو جہاد کی اجازت ہو گئی، دوسرا مشرکوں کی شرارتیں ختم نہیں ہو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کی طرف جو پیغام بھیجنا، مشرکوں کی طرف پیغام بھیجنا کہ ان کو آپ قتل کر دیں، ان کو آپ یہاں سے نکال دیں، تو آپ علیہ السلام نے پھر دفاعی انداز میں صحابہ کو بھیجا کہ کوئی مشرک ملے اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ مختلف جگہوں پر جہاں ان کی گزرگاہیں ہوتی تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو بھیجتے تھے تاکہ پھر ایسے مقابلہ ہوگا، ان کی شرارتیں ختم نہیں ہوگی۔ تو مختلف جو ہے وہ لڑائیاں ہوتی رہیں۔ جس لڑائی میں آپ علیہ السلام شامل ہوں اسے غزوات کہتے ہیں، اور جس لڑائی جنگ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شامل نہ ہوں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھیج دے صحابہ کو، تو اسے کہتے ہیں سرایا۔ ٹھیک ہے، تو سریہ اس کی واحد ہے۔ جب آپ علیہ السلام جن جنگوں میں آپ شامل ہوتے تھے، غزوات، وہ ان کی تعداد جو ہے وہ 27 ہے۔ 27 جنگوں میں آپ شامل ہوئے، اور جو سرایا تھے وہ 47 ہیں۔ اچھا، جو 27 ہیں، جو غزوات جس میں آپ علیہ السلام خود شامل ہوئے، اس 27 کی 27 میں لڑائی نہیں ہوئی۔ لڑائی صرف جو قتال یا جہاد جو ہوا ہے، یعنی کافروں سے آمنا سامنا ہوا ہے، وہ 9 میں ہوا ہے۔ 27 میں صرف 9 میں ہوا ہے، جیسے بدر میں، احد میں، اور اس کے علاوہ مریسہ، خندق، قریظہ، خیبر، فتح مکہ، حنین اور طائف۔ جو 6 ہیں ان میں ہوا ہے۔ باقی جو تھیں ان میں جو ہے وہ آپ شامل ہوئے گئے ہیں، لیکن جو ہے وہ لڑائی نہیں ہوئی۔ اور اس کے علاوہ 47 جو آپ نے وفود بھیجے انہیں کہتے ہیں سرایا۔ تو مختلف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وفود بھیجے، اور ایک دو جگہ تو آپ نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تمہیں خط میں دیتا ہوں اور تم جاؤ، اور 2 دن کے بعد خط کو کھولنا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کی حکمت عملی دیکھیں کہ آپ خط لے کے جاؤ اور اس طرف چلے جاؤ، اور 2 دن کے بعد خط کو کھولنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن جہش صحابی تھے، وہ 2 دن چلتے رہے، اس کے ساتھی تھے کہ تقریباً کوئی 10-12، تو وہاں جا کے انہوں نے خط کھولا تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ اب تم آگے طائف کی طرف چلے جاؤ، مکے کے قریب جا کے وہاں ایک قافلہ ملے گا، اس کو آپ نے پکڑنا ہے، جس میں ابو جہل ہے، اس کو اپنے گھیرے میں لینا ہے۔ تو وہ گئے آگے، اور آپ علیہ السلام کو اللہ نے جو بتایا تھا تو وہ قافلے کے قریب پہنچے اور اس کو گھیرے میں ڈالا۔ تو یعنی کہ جنگ قریب ہونے والی تھی، تو ایک وہاں کا سردار تھا، اس نے پھر جو ہے وہ باتوں کو ٹال مٹول کر کے اس جنگ کو رکوایا۔ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان واپس آئے۔ تو چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام پر جو وہ صحابہ پر اور آپ علیہ السلام کے ساتھ یہاں بھی انہوں نے سکون سے نہیں رہنے دیا، مدینے میں بھی شرارتیں ان کی ختم نہیں ہوئی، تو آپ علیہ السلام نے ان کو کمزور کرنا چاہا۔ ظاہر ہے پھر آپ خاموش رہیں گے تو اور بڑھیں گے۔ وہاں جو بھی قافلے جاتے تھے تو صحابہ کرام پھر وہاں جا کے ان کو روکتے تھے، پکڑتے تھے، اور 1-2 بندے ان کے مارے بھی۔ جب آپ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ان کا ایک بہت بڑا قافلہ مکہ سے شام کی طرف جا رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو ہم نے روکنا ہے اور ان کو مالی نقصان پہنچانا ہے۔ تو آپ گئے
लेकिन वो काफिला निकल जा चुका था, चला गया। तकरीबन 150 सहाबा कराम आप अलैहिस्सलाम के साथ थे। जब कुछ अरसे के बाद पता चला कि वो काफिला वापस आ रहा है और उस काफिले के जो हेड हैं वो हैं अबू सुफियान, और उस पर माल बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा सोना था, 200 किलो से ज्यादा सोना था उसमें। यानी अब सोना इतना, मतलब वो, और बहुत कुछ था उसमें। और उस काफिले की पहरेदारी में 40 लोग थे, और लिखा है सीरत निगारों ने कि 40 लोग भी थोड़े थे, ज्यादा होने चाहिए थे। खैर आप अलैहिस्सलाम ने 2 सहाबा को भेजा, एक सहाबी मिक़दाद, एक और सहाबी थे, कि जब ये काफिला तुम्हें नजर आए ना तो तुमने हमें इत्तला देनी है, हमने इनको माली तौर भी कमजोर कमजोर करना है। तो वो वहां रुके रहे। जब उन्होंने उस काफिले को देखा तो फौरन जो है वहां से मदीने की तरफ उन्होंने सफर बांधा, दौड़ पड़े, अपने घोड़े दौड़ाए जाके हम आप अलैहिस्सलाम को जो इत्तला दें। अबू सुफियान जाहिर है वो भी चालाक आदमी था, तो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। उसने वहाँ लोगों से पूछा कि यहाँ किसी गैर मारूफ शख्स को आप लोगों ने देखा तो नहीं? तो उन्होंने कहा जी हमने कोई गैर मारूफ शख्स, अजनबी शख्स हमने नहीं देखा। हाँ 2 शख्स हमने देखे, यहाँ 2 मरतबा पानी लेके गए हैं। उसने कहा वो कहाँ है मुझे बताए। तो उनका जी वहां उनके ऊंट बिठाए थे उन्होंने, वहां है। तो वहां गए तो वो शख्स नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने ऊंट बिठाए थे तो ऊंटों ने जो है वो अपनी जुगाली की और अपना लीद जो था ऊंटों का वो पड़ा हुआ था। तो अबू सुफियान ने वो लीद उठाई, उठा के उसको मसला। तो उसने कहा कि ये ऊंट जो है वो मदीने के हैं, इन्होंने मदीने की खजूरें खाई हुई हैं, उसमें वो गिटकें थी खजूरें। तो उसने कहा कि ये मुझे यकीन है कि ये जासूस हैं और इन्होंने हमारे काफिले की जासूसी की है, अब लिहाजा हमारे काफिले को खतरा लायक हो गया। उसको पता चल गया, छठी जिसे कहते हैं आप। उसने जो रास्ता था, जो आम रास्ता था जिस पर आप अलैहिस्सलाम का इरादा था कि इसको हमने वहां रोकना है, उसने वो रास्ता बदला और समंदर, साहिल समंदर की तरफ ले गया। और एक शख्स था उसके काफिले में, जमजम गफ्फारी, उसको भेजा कि भाई फौरन ऊंट पे जाओ, दौड़ा के जाओ, कहीं सांस नहीं लेनी, बस सीधे आपने मक्के पहुंचना है और वहां जाके लोगों को इत्तला देनी है कि अगर आपने अपना माल बचाना है, पैसा बचाना है, तो फौरन जो है वो आप हमारा साथ दें और इस काफिले को बचाएं। जमजम गफारी जब मक्के पहुंचा, अभी ज़ाहिर बहुत जल्दी पहुंचा, तो उसने जाके ऊंट की जो नाक काट दिया, खून बहने लग गया ऊंट से। ऊंट की जो कुहान काट दी, कजावा उल्टा करके अपने गला, अपने गिरेबान फाड़ दिया, जो सर पर कोई कपड़ा शपड़ा था वो सारा उतार के चीखने लगा, और मक्के वालों अपनी इज्जत बचा लो, अपना माल बचा लो, अपना सोना बचा लो, मोहम्मद से अगर बचाना है फौरन काफिले का साथ दो, वरना तुम्हारा बहुत ज्यादा नुकसान होगा। वो चीखता रहा, गली में चलाता रहा, लोगों को उभारता रहा। लोग सारे तैयार हो गए कि ये कैसे हो सकता है कि मोहम्मद हमारा माल जो छीन ले। सारे लोग वहां तैयारी करने लगे कि हम जाके काफिले का साथ देना है और काफिले को हमने बचाना है। उमैया बिन खल्फ और दूसरे जो है अबू जहल, मतलब सारे लोग वहां से, सिर्फ अबू लहब पीछे रह गया, बाकी सब के सब वहां निकल आए। और उमैया बिन खल्फ पीछे कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि नबी अलैहिस्सलाम का एक फरमान है कि तूने मरना है, जो आप अलैहिस्सलाम ने उसके लिए बद्दुआ की थी। और तो उसको फिर कहा कि तो अगर तू नहीं जाएगा तो बुज़दिल होगा, मजबूरी के तौर पर उसको भी ले गए। जब काफी उन्होंने फासला तय कर लिया और अबू सुफियान ने पहचान लिया कि अब मैं खतरे से बाहर हूँ, मैं साहिल समंदर की तरफ गया हूँ और मोहम्मद के उस काफिले, उनके हाथ अब मैं नहीं आने वाला, मैं दूर चला गया हूँ। तो उसने दूसरा कासिद भेजा, उसने कहा कि अब आप लोग वापस चले जाएं, मैं अब खतरे से बाहर आ गया हूँ। तो मक्के से जो लोग निकले थे वो तकरीबन कोई 1300 के करीब लोग थे। अब उनको जब ये बात मालूम हुई कि भाई वो खतरे से निकल गया, तो जो उमैया बिन खल्फ था, दीगर सरदारान थे, उन्होंने कहा जी हम वापस जाते हैं, असल मसला हमारा हल हो गया। अबू जहल ने कहा नहीं जी ऐसा नहीं होगा, हम निकले हैं, हम वहाँ बदर तक पहुंचेंगे, वहाँ हम शराबें पियेंगे, हम वहाँ नाच गाना देखेंगे, हम एक धाक बिठाएंगे, सारे
जो अरब कबाइल है वो देख लेंगे कि हमारे अंदर कितनी जुर्रत है, हमारे पास कितना पैसा है, हमारे पास कितनी वाफर मिकदार में हमारे पास सिपह सलार है, सिपाही हैं, तो हमने वहां जाके खा पी के हम एक अरबों को दिखा के आएंगे कि हम क्या है। बाकी कहने लगे कि जब हमारा काफिला बच गया था, हमें क्या लड़ाई से क्या करना है, वो भी मोहम्मद भी हमारे कोई भतीजों में से, किसी के भांजों में से, किसी क्या लगता है, किसी के करीब है, वहां लड़ेंगे तो ज़ाहिर अपनों को मारेंगे, छोड़े इसको। लेकिन अबू जहल नहीं माना, उसकी शरारत बढ़ती गई, फिर लेके आगे आ गया और ये तय हुआ कि हर रोज 9 ऊंट ज़बह किए जाएंगे। इतने लोग थे, 9 या 10, 9-10 का ये। दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकले, आप अलैहिस्सलाम को इल्म हो गया कि काफिला आगे निकल जा चुका है, अबू सुफियान हमारे हाथ से काफी आगे निकल गए हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा कि अब 2 तरीके हैं, कि या हम अभी भी काफिले के पीछे जाएं, या जो ये कुफार हमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं हम इनके मुकाबला करें। अब वहां 1300 आदमी थे, बाद में वो 300 बाहर निकल गए थे, तो 950 बदर तक पहुंचे। मुसलमानों में से 307-8 थे, 313 कहा जाता है, 14-15, लेकिन 7-8 से क्यों, उनमें से कुछ ऐसे थे जिनको जंग बदर में इसी में शामिल किया जाता है इस फजीलत में, लेकिन वो थे नहीं, जैसे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला हो, दीगर ऐसे भी साहबा हैं। तो 300 से कुछ साहबा थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब तुम्हारा क्या ख्याल है। तो कुरान पाक में सूरह अनफाल में इसका जिक्र है कि उनमें से एक ग्रोह का इरादा था कि हाँ भाई हमने काफिले के पीछे जाना है, वो माल लेना है, यहाँ लड़ना बहुत है, खतरे में, ये खतरे से खाली नहीं होगा। तो अल्लाह फरमाता है ऐसे लग रहा था कि उनको मौत की तरफ धकेला जा रहा था। लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने आप अलैहिस्सलाम के सामने ऐलान किया कि नहीं, जो आप अलैहिस्सलाम चाहेंगे। हजरत अबू बकर खड़े हुए, अर्ज किया रसूल अल्लाह आपके साथ है जो आप कह रहा थे। उमर फारूक खड़े हुए, मिकदाद खड़े हुए, फिर साद बिन उबादा, साद बिन ज़रारा खड़े हुए औस और खजर से। उनकी या रसूल आप बरकुल गमात तक आप हमें लेके जाएंगे, जहाँ भी आप लेके जाएंगे हम आपके साथ हैं। इसकी वजह ये भी थे कि आप अलैहिस्सलाम से जब उन्होंने अहद लिया था अकबा में, जो बैत हुई थी अंसार की, वो ये हुई थी कि हम मदीने में आपका की हिफाजत करेंगे। अब हम ये मदीने से बाहर जब आ गए तो आप अलैहिस्सलाम ने उनसे एतमाद लिया, जिसे कहते हैं एतमाद का वोट, एतमाद लिया कि अब करना क्या है। तो वो सारे इस बात पे राजी हुए कि अब हमने मुकाबला करना है। और थे 300 के कुछ, और 2 घोड़े थे उनके पास, 70 ऊंट थे, 1 ऊंट पर 3 आदमी जो है वो सवार होते थे, और जरें भी पूरी नहीं थी। लेकिन अल्लाह का नाम लेके बदर की तरफ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चल पड़े। हदीसों में एक यहाँ वाक़या मिलता है, एक सहाबी उन्हें कहते हैं साहिब सिर रसूलुल्लाह, साहिब सिर रसूलुल्लाह। मेरे इल्म मुझे याद, नाम किसी को याद है उस सहाबी का? हुज़ैफा बिन यमान। हुज़ैफा बिन यमान, हुज़ैफा बिन यमान, शाबाश। साहिब सिर रसूलुल्लाह, वो मक्के से निकले, वो अपने वालिद के साथ थे। तो कुरैश ने उनको पकड़ लिया, उन्होंने कहा जी हम तुम्हें नहीं जाने देंगे मदीने, इसलिए कि हमारी यहाँ जंग छिड़ने वाली, तुम जाओगे तो वहाँ नफरी और बढ़ जाएगी, तुम 2 आदमी और बढ़ जाओगे। तो हजरत हुज़ैफा ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि आप अलैहिस्सलाम शहर से निकले हैं या जंग के लिए निकले हैं, बदर की तरफ जा रहे हैं, मैं तो मदीने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा आप हमसे वादा लें कि आपने जंग में शामिल नहीं होना, आपने मदीने जाना है। उनका जी मेरा वादा आपसे, मैं सीधा मदीने जाऊंगा। जब वो मदीने के करीब पहुंचे तो इधर से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने से बदर की तरफ जा रहे थे, तो उनकी मुलाकात होगी आप अलैहिस्सलाम से। अर्ज किया रसूलुल्लाह मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हुजूर ने फरमाया ठीक है। फिर आपने वजाहत की कि इस तरह हमारे साथ कुफार ने हमें घेर लिया था और ये मुआहिदा उन्होंने कर लिया कि आपने इस तरह करना है। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आपने वादा किया था कि मैं मदीने जाऊंगा, अब आपने मदीने जाना है। यानी ये आप देख लें कि नफरी थोड़ी है, मुसलमान थोड़े हैं, 2 मुसलमान भी बढ़ जाएं तो ज़ाहिर इजाफा हो जाएगा। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने वादे की पासदारी करते हुए आपने फरमाया कि नहीं, तुमने वादा पूरा करना है, वादा तुमने अहद लिया कि मैं मदीने जाऊंगा, मैं जंग में शामिल नहीं होऊंगा, तो आपने वहीं मदीने पहुंचना है। ये वाकया सही मुस्लिम में और दीगर किताबों में मिलता है। और आप अलैहिस्सलाम कितनी वादे की पासदारी करते थे, कुरान पाक में इसका बहुत अहम जिक्र है, वाउफू बिल अहद इन्नल अहद कान मसूला, वादे को पूरा करो और वादे से मुतालिक सवाल होगा। जो वादा किया जाए उस वादे को आपने क्या करना है, पूरा करना है। जबान जो आपने देनी है, जबान को आपने पूरा करना। अगर चाहे बाज़ औक़ात नुकसान भी होता है, लेकिन आपको इससे तसल्ली होती है कि नहीं
जो मैंने बात की वो पूरी होनी है। तो आप अलैहिस्सलाम फिर बदर की तरफ चल पड़े, मुसलमान भी आप अलैहिस्सलाम के साथ हो गए। करीब जब बदर के पहुंचे तो एक जगह पड़ाव किया, तो सहाबी ने कहा कि या रसूलल्लाह, खब्बाब बिन अर्त गालिबन सहाबी थे, या रसूलल्लाह यहाँ जो आपने पड़ाव किया है ये वही की तौर पर किया है या आपका मुशाहिदा है, तो या आपकी राय है? तो आपने सुना कि वही के तो नुज़ूल नहीं हुआ, मैं यहाँ वैसे हमने पड़ाव की। फरमाया अगर अगर हम आगे चले जाएं और हम करीब बदर में आगे जाके हम कुछ जो है वो कुएं हैं उन पर हम काबिज हो जाएं, कुओं पर पानी भी हमें मिल जाएगा और साथ में जो कुफार हैं उनके कुओं पर भी हम क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। तो ऐसा करें। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया ठीक है, आगे चलते। फिर आगे चले। जी ईसा गजाली साहब। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चंद सहाबा की ड्यूटी लगाई थी कि अपने काफिले को माली नुकसान पहुंचाना है, तो इसके मतलब इसका मकसद क्या था, माली नुकसान पहुंचाने का? नहीं, काफिले को नुकसान नहीं, काफिले का इतला देनी थी। जो आप काफिला जा रहे तो हमने उसको पकड़ना है, हमने उस वजह हाँ जी, वजह क्या थी कि काफिले को पकड़ने की? वजह मैंने अर्ज की ना, वजह ये थी कि उनको माली कमजोर करना है। वही पैसा ये मुसलमानों के खिलाफ जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो तलवारें ले रहे हैं, वो लोगों को तैयार कर रहे हैं, तो उनको कमजोर करना है माली तौर पर। और जो वो पैसा लेकर लोगों को भेजते हैं और मुसलमानों को तंग करते हैं, तो इस लिहाज से उनको सामने वाले को कमजोर करना है। तो ये इसकी। ये काफिला मक्के जा रहा था जी, ये काफिला मक्के जा रहा था? हाँ, मक्के जा रहा था, शाम से मक्के जा रहा था जी। और ये जो बदर है, बदर मदीना के अंदर ही है? बदर जो है ना मदीना के अंदर नहीं है, मदीना से तकरीबन कोई 70 किलोमीटर की दूरी पर है जी। मैं गया था तो मैं वहाँ बदर भी गया था, वहाँ देखा था। 2-2.5 घंटे हमें लग गए थे, ठीक है ना। 70 से, हाँ, बल्कि मेरे ख्याल में 120 किलोमीटर। हजरत 70 से बड़ा ज्यादा है जी, 120 के करीब है मेरे ख्याल में। अभी वहाँ कसम 120 किलोमीटर है, 140। अभी लिखे ना, कोई भाई लिखेगा ना मदीना टू बदर डिस्टेंस, तो आप अभी आपको मोबाइल में पता लग जाएगा। मैं तो अंदाजन कह रहा हूँ। तो वो काफी दूर है, 2-3 घंटे तो बस पर लगते हैं, तो पैदल जाए तो कितना टाइम लगता है। जब आप सीरत पढ़ेंगे फिर मदीने जाएंगे, आपको मालूम होगा अच्छा ये मकाम रोहा है जहाँ आप अलैहिस्सलाम बदर के बाद वापस यहाँ आप ठहरे, ये बदर का मकाम। वो फिर वहां जाएंगे मस्जिद अरीश देखेंगे, जहाँ फरिश्ते उतरे वो भी देखेंगे। तो ये सीरत पढ़ने के बाद आपको ना काफी 152, अच्छा माशाल्लाह काफी दूर है ना, 152 किलोमीटर, काफी। तो ये मतलब रास्ता पहले वही था, पुराना रास्ता मदीने से फिर मक्के के उसी के करीब जाना होता था। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर आगे जाके तो और करीब गए। अच्छा, वो जो कुफार थे मक्के की तरफ से आ रहे थे, तो वहां उन्होंने जिस जगह पड़ाव किया, वो जगह जो थी वो वहां पत्थर थे, पक्की जमीन थी। और मुसलमानों ने जहां जो है वो अपना पड़ाव किया, वहां जो रेत थी। अब यहाँ चलना मुश्किल था और फिर शैतान ने वसवसा डाला और कुफार ने भी कहा लो, तुम कहते हो कि हम जो है हर वक्त हम मुसलमान ही फतह याब होंगे, न तुम्हारे पास पानी है, तुम्हें जो जगह मिली है वो भी तुम्हारे साथ समझो ऐसी जगह है कि तुम्हें चला नहीं जाता। तो शैतान के वसवसों को अल्लाह ने ऐसे दूर कर दिया कुरान पाक में कि अल्लाह ने मूसलाधार बारिश बरसाई। जब मूसलाधार बारिश हुई, पानी भी वाफर मिकदार में आ गया। और जो मुसलमानों की तरफ जो रेतला इलाका था, अब जब बारिश हो गई तो बेहतरीन हो गया। और जो कुफार की तरफ इलाका था वो पथरीला इलाका था, जब बारिश हुई तो कीचड़ हो गई। तो एक तो ये था। दूसरा, मुसलमानों को थोड़ा सा ये था कि वो लोग कितने ज्यादा हैं, हम कम हैं। तो अल्लाह ने उनको गुनूदगी अता फरमाई, वो यानी इससे खतरे के अंदर भी वो सो गए और उससे उनको सुकून मुयसर हो गया। तो वहां कुफार और इधर मुसलमान आपस में अब जो है ना माहौल गर्म हो रहा है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात को मशवरा करते हैं, सहाबा से मिलते हैं, किस तरह करना है। आप फिर उनकी तकसीम करते हैं। जंगी जो मराइल होते हैं, मैमना होता है, मैसरा होता है, यानी एक काफिले के दाईं तरफ कुछ लोग जाते हैं और लश्कर जाता है छोटा सा, यानी 10-12 घोड़सवार हों या लोग हों, दाईं तरफ जाते हैं।
मेमना कहते हैं, मैसरा कहते हैं, पूरा एक जंगी हिकमत अमली है वो अपनाई जा रही। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात को अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं कि या अल्लाह अगर ये लश्कर हार जाता है तो फिर जमीन पर तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। और बड़ी जो है वो अर्ज करते हैं, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम की चादर भी कांधे से उतर जाती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह परेशान न हो तो अल्लाह इंशाल्लाह हमारा साथ देगा, अल्लाह हमारे साथ है। तो रात को फिर वहां से आप अलैहिस्सलाम वो उस मकाम बदर, आप देखेंगे मकाम बदर, तो वहाँ मकाम बदर का मुआयना आप करते हैं और आप फरमाते हैं कि इंशाल्लाह कल यहाँ फलां काफिर मरेगा, फलां काफिर मरेगा, यहाँ फलां काफिर मरेगा और यहाँ फलां काफिर मरेगा। ये आपको अल्लाह ने जो इल्म गैब अता फरमाई, ये बुखारी मुस्लिम में रिवायत है कि ऐसा होगा। अगले दिन जब दिन चढ़ गया और दोनों फौजें करीब करीब हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने सफ़ें जब सीधी करवाई कि भाई लाइनों में खड़े हो जाओ, फिर उनको नसीहत भी करनी, उनको बताना भी है। एक सवाद सहाबी थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने बर्ची से उनको कहा तुम पीछे, जरा पीछे हो जाओ ना, सीना आगे थोड़ा सा पीछे से ना करो। तो उसने कहा या रसूलल्लाह आपने मुझे ना मारा है, धक्का दिया है, तो इसका आप तो इंसाफ पसंद है। उसने जब ये बात की तो आप फरमाया अच्छा तुम ले लो भाई, अपना जो तुम्हें तकलीफ हुई है, जब दो तुम लेना चाहते हो ठीक है। आप अलैहिस्सलाम ने भी कमीज उतार दी कि चलो ठीक, जो तेरे ऊपर कमीज नहीं थी और तुझे कोई बरसी लगी, ऐसी कोई बात हुई है तो तुम भी कर लो। वो करीब जाके आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऐसे सीने से लगा लेता है, यानी कि जिसे कहते हैं ना जप्पी डाल देता है गले। तो आप फरमाया कि ये क्या है? अर्ज की या रसूलल्लाह सामने कुफार खड़े हैं, मुशरिक खड़े हैं, तलवारें नंगी हमारे पास भी उनके पास भी, बस मेरी ख्वाहिश है कि आखिरी जिस्म आपके जिस्म को छूना था, आखिरी मर्तबा आपके जिस्म को छूना, आपसे मोहब्बत का इजहार करना था। मैं कौन होता हूँ आपसे कोई बदला लेने वाला, तो मैंने तो माफ कर दिया। तो इस तरह का इनका इजहार है मोहब्बत होता था। तो जंगें अब दोनों साथ हुई, अब यानी दोनों जो है ना वो लश्कर करीब हैं, उनके पास माल दौलत है जो है वो ज्यादा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के इधर जो शेर खड़े हैं। पहला एक शख्स था जहाँ से लड़ाई शुरू हुई, उस शख्स का नाम था असवद, गालिबन असवद काफिर था। उसने घोड़ा दौड़ाया, उसने कहा कि मैं मुसलमानों के जो ये इनका हौज है ना पानी का, वहां से मैं पानी पी के दिखाऊंगा तुम्हें। अब ये नहीं अगले को तड़ी देना, वहां से मैं पानी पी के दिखाऊंगा, वापस आऊंगा। जब वहां से उसने घोड़ा दौड़ा के आया तो इधर हजरत हमजा निकले, तो हजरत हमजा ने उसका रास्ता रोक लिया, लड़ाई हो गई। तो उसको उसकी एक टांग हजरत हमजा ने काट दी। फिर वो घसीटता हुआ वो हौज के करीब जाके पहुंचा, फिर हजरत हमजा ने जाके दूसरी टांग काटी और फिर वो अदर गुस्सा था, हजरत हमजा ने उसको मार दिया। तो यहाँ से ये पहला शख्स जो मरा असवद नामी काफिर था। उसके बाद फिर 3-4 और कुछ मुसलमानों की जो लड़ाई हुई और वो शहीद हो गए। एक हजरत जहजा गफ्फारी, एक हजरत जो है वो उमर के एक गुलाम थे, बाद में आजाद हुए, वो भी उसमें एक शहीद हो गए। अब फिर रुक गई, फिर बाकायदा दोनों तरफ से जो है वो लश्कर आमने सामने हुए और वहां से कुफार के जो 3 आदमी निकले, उतबा, शैबा और वलीद, उन्होंने ललकारा कि भाई हमें अब हमारे मुकाबले के बंदे ले आओ। सामने जो आपने लड़ाई हम अभी करेंगे ना पहले, अब हमें 3 बंदे हमें चाहिए। हम भी 3 निकले हैं। अब एक उसूल है जंग का, वो थे अरब, लेकिन इस तरह की चीजें भी हुआ करती थी। तो यहाँ से फिर 3 साहबा निकले, अब्दुल्ला बिन रवाहा निकले, मुआज और मुआवज साहबा निकले। तो उतबा ने पूछा भी तुम कौन लोग होते हो, क्योंकि वो पहना होता है, खौद पहना होता है, जरा जंगी जो चीजें हिफाजत के लिए पहनी होती हैं। उनका जी हम अंसार लोग हैं। तो उतबा ने कहा भी हमारी तुमसे लड़ाई कोई नहीं, तुम खेती बाड़ी करने वाले, तुम क्या हमसे लड़ोगे। अंसार खेती बाड़ी करते थे और जो मक्के वाले थे वो तिजारत करते थे। और ताजिर आदमी एक दिन में ही इतना कमा ले कि जो दूसरा आदमी महीने साल में कमाएगा। तो वो अपने आप को फखरे तौर पर कुछ और समझते थे, ये किसान समझते थे ना अंसार को, ये किसान खेती बाड़ी करने वाले। तो कहा मोहम्मद बंदे टक्कर के भेजो। उतबा ने ललकारा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कि मोहम्मद बंदे टक्कर के भेजो, और अंसार को कहा तुम चले जाओ।
हमारे चचा जो चचाजाद भाई है, चचेरे, वो भेजो, यानी जो मक्के से आए हैं ना, वो हमें भेजो। तो आप अलैहिस्सलाम ने उबैदा बिन हारिस को कहा खड़े हो जाओ, हजरत हमजा को कहा तुम निकलो, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि तुम निकलो। ये तीनों जो मक्के से आए थे, तीनों खड़े हो गए। तो जनाब अली आमने सामने बात हो गई। हजरत अली जो है वो उत्बा का बेटा वलीद जवान था, उसके मुकाबले में आ गए। उसके बाप के बेटे में उबैदा बिन हारिस आ गए, और उत्बा का जो भाई था शेबा, उसके मुकाबले में हजरत हमजा आ गए। यानी वहाँ उत्बा, शेबा, हमजा, उत्बा और शेबा भाई थे, और वलीद जो है वो उनका उत्बा का बेटा था, ज़ाहिर है वो जवान था। तो वलीद के मुकाबले में हजरत अली थे, शेबा के मुकाबले में हजरत हमजा थे, और उत्बा के मुकाबले में उबैदा बिन हारिस थे। लड़ाई हो गई। उबैदा जो साहबी थे वो उम्र में बड़े थे और कम सन थे, यानी कि वो जवान नहीं थे। तो उत्बा और उनकी जब लड़ाई हुई तो वो आपस में, अभी उनकी लड़ाई हो रही है, तो वहां दूसरी तरफ हजरत हमजा और हजरत हमजा की और शेबा की लड़ाई शुरू हुई। तो उन्होंने तो मिनट भी नहीं लगाया, हजरत हमजा ने मार गिराया शेबा को, उधर हजरत अली ने मिनटों में मार गिराया वलीद को, जो उत्बा का भाई था। लेकिन इस तरफ जो है उत्बा ने जख्मी कर दिया उबैदा को। तो हजरत हमजा और हजरत जो अली जैसे ही वहां से फारिग हुए, फौरन ही उन्होंने हमला कर दिया उत्बा पर, और उत्बा का भी काम तमाम कर दिया। तीनों जो है वो ललकारते हुए फिर वापस आए। हजरत हमजा ने और अली ने फिर उबैदा को उठाया और मुसलमानों की तरफ आ गए। तो ये एक 2-2 ऐसी लड़ाई थी। अब ये कैसा मंजर होगा, किस तरह होगा, एक ये तो दिलों का मकाम है। उसके बाद जनाब अली घुमसान की लड़ाई शुरू हो गई। उधर से भी तलवारें, उधर से भी तलवारें, उधर से भी तीर, इधर से भी तीर। मुसलमान थोड़े, लेकिन अल्लाह ने मुसलमानों को इस तरह दिखाया कि वो काफिर थोड़े हैं ये अल्लाह का, और काफिरों को दिखाया कि मुसलमान ज्यादा हैं। ये सूरह आल इमरान में और सूरह अनफाल में इसकी पूरी डिटेल मिलती है। तो ये लड़ाई शुरू हो गई। अल्लाह ने फिर कुरान पाक में कि अल्लाह ने फिर 1000 फरिश्ते भेजे, फिर 3000 फरिश्ते भेजे, फिर अल्लाह ने 5000 फरिश्ते भेजे। जब आप जाएंगे जगह बदर पे, मकाम बदर, वहां से आप लौटेंगे ना, तो इधर एक वो पहाड़ी है, रेतला पहाड़ है, रेत ही रहते, तो वहां वो आपको जियारत करवाएंगे कि यहाँ फरिश्ते उतरे थे। 1000 फरिश्ते, फिर 3000 फरिश्ते, फिर 5000 फरिश्ते। तो फरिश्तों के सामने वो कुछ भी नहीं। वो सहाबी तलवार यूं निकालते तो उसकी गर्दन ही उधर पड़ी होती थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद भी जाहिर है लड़ाई तो थी, झगड़ा था। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि मैं खड़ा हुआ था तो 2 नौजवान बच्चे ना मेरे पास करीब आ गए। तो उन्होंने कहा कि चाचा जी अबू जहल किधर है? तो मैंने कहा अबू जहल, तुमने क्या करना है अबू जहल का? उनका हमने सुना है कि हमारे नबी को गालियां देता है, हमने इसको नहीं छोड़ना। नौजवान छोटे बच्चे थे। तो मुआज उनका नाम देखा, मुआवज, ये दोनों का मुआज बिन जुरै या मुआज बिन अफरा, इस तरह से सीरत की किताबों में लिखा है, लेकिन इतनी उम्र नहीं थी उनकी। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि मैंने कहा कि वो बंदा देख रहे हो जो लाइनें सीधी करवा रहा है, जिसने ऊपर बड़ा लोहे का खोद पहना हुआ है। तो सामने वो जो अबू जहल था वो लाइनें सीधी करवा रहा था कुफार की, तो वो है। कहते हैं मैं मतलब इतनी बात करनी थी, वो दौड़ पड़े, उड़ते हुए वहां गए, और फिर वो उन्होंने जवान मर्दी का मुकाबला करते हुए अबू जहल को गिरा दिया। एक का बाजू टूट गया, निकल गया, और यहाँ तक कि उसने फिर बाजू को पाँव के नीचे रखा और तलवार मार के बाजू अलग करके फिर भी उससे लड़ता रहा, और बिल आखिर उसको गिरा दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात मालूम हुई कि पता करो कि उसका क्या बना अबू जहल का। तो अब्दुल्ला बिन मसूद साहबी आए, उन्होंने देखा कि अबू जहल गिरा पड़ा हुआ है। तो आप अब्दुल्ला बिन मसूद जो है वो अबू जहल के ऊपर बैठ गए। अबू जहल देखिए तकब्बुर उनका कितना होता था। अबू जहल कहने लगा कि मुझे अफसोस है कि मैं अपने कबीले के लोगों के हाथों नहीं मारा गया, मैं जो है वो खेती बाड़ी करने वालों के हाथों मारा गया हूँ। वो जो साहबी थे ना जिन्होंने मारा था जवान, वो अंसारी थे, मैं उनके हाथों मारा गया हूँ। यानी इतना उनके अंदर तकब्बुर होता था, ये कबायली तकब्बुर। तो उसने बात की तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने मारी तलवार, उसका काम तमाम कर दिया। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया कि ये इस उम्मत का फिरौन है।
अच्छा, अब ये लड़ाई ऐसा नहीं कि एक ही जगह है, पूरा एक माहौल है, कोई 10 उधर जा रहे हैं, कोई 15 इधर जा रहे हैं, कोई इधर, ये पूरा एक पूरा मैदान है। तो उधर हजरत बिलाल भी उसमें शामिल है, और बिलाल का जो आका था पुराना उमैया बिन खलफ, जिसने आपको तकलीफें दी, रेत पे सुलाया, आपको टॉर्चर किया, आपको मारा, वो भी उधर था। जब हजरत बिलाल ने देखा उसको, आप आटा गूंद रहे थे मुजाहिदीन के लिए, उनके तैयारी के लिए, आपने वो छोड़ा और ऐलान किया, मुसलमानों वो देखो जी, वो जा रहा है, उमैया बिन खलफ जा रहा है। मुसलमान उसके पीछे दौड़ पड़े। अच्छा, उमैया बिन खलफ की दोस्ती थी अब्दुर्रहमान बिन औफ से। तो यानी कि पहला ही मुआहिदा हुआ था कि अगर आप, मैं मक्के आ गया तो आपने मेरी हिफाजत करनी है, आप मदीने आ गए तो मैं आपकी हिफाजत करूंगा। तो पुराना कोई अहद था। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा भी नहीं, ये मेरे साथ है, तो इसलिए कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा। पर मैं नहीं, आज इसको नहीं छोड़ना। बिलाल तो बड़े जोश में थे, नहीं छोड़ना। पहले तो उसके बेटे का काम तमाम कर दिया, मुसलमान ज्यादा आ गए, उधर अब्दुर्रहमान बिन औफ अकेले थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उनकी हिफाजत करते हुए उसके ऊपर आ गए कि भाई इसको नहीं मारना। उन्होंने कहा नहीं, इसको छोड़ना नहीं। उनको साइड पे किया और बिलाल भी आ गया जनाब अली। उमैया बिन खलफ जो है ना, उसका काम तमाम कर दिया गया। तो वो जो जिसने ज्यादतियां की थी, जिसने तकलीफें दी थी बिलाल को, उसका काम तमाम कर दिया गया। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको ये सामने भी आ जाए ना तो इनको नहीं मारना। वो लोग उनकी आता है सीरत में नाम आते हैं, जब वो सहाबा के सामने आए ना, उसमें एक शख्स, तो सहाबा ने कहा भाई आपसे नहीं लड़ना हमने, आप साइड पे हो जाओ। उसके साथ एक और मुशरिक था, उसने कहा इसके बारे में, उनका नहीं, इसको नहीं छोड़ना। उन्होंने कहा फिर तो नहीं, फिर तो मुझ पर लोग हंसेंगे कि मेरे साथी को कत्ल कर दिया गया और मैं खामोश हुआ। तो फिर वो लड़ाई में वो भी मारा गया। यानी उनके अंदर काफिर थे, लेकिन जो अहद था ना उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। तो इस तरह की चीजें बिल आखिर जब अबू जहल मरा, उमैया बिन खलफ मरा, उतबा, शैबा, वलीद मरे, इनके जो सरदार मरे, नबी अलैहि सलाम ने जो रात थी बदर की, आपने फरमाया कि मक्के ने तो अपना जिगर पारे तुम्हारे सामने रख लिए हैं। यानी मक्के के जो लोग हैं उन्होंने अपने बड़े सरदार जो आपके सामने रख लिए हैं। अब आपने हिम्मत करनी है, इनको चीर के रखना है। ये ऐसा हुआ, बड़े बड़े सरदार आए, सबको मुसलमानों ने चीर के रख दिया। तो जब ये सारों को चीर के रख दिया तो उनको बाकी कुछ भाग गया, कुछ को कैद कर लिया। 70 जो उनके मारे गए, 70 उनके कैदी हो गए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी कोई जंग जीतते थे तो आप फौरन वापस नहीं आते थे। 3 दिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ स्टे करते थे, उसके बाद फिर आप अलैहिस्सलाम आते थे। इन कुफार को फिर गड्ढे में डाला गया, और उमैया बिन खलफ जो था वो फूल गया था पहले ही, उसको बाहर ही फिर उधर कहीं फेंक दिया और ऊपर मट्टी डाल दी, बाकियों के गड्ढे में डाल के उसको कर दिया। आप अलैहिस्सलाम वहां गए और फरमाया कि बताओ तुम्हारे रब ने तुमसे क्या वादा किया था। मेरे रब ने जो वादा किया वो तो सच करके दिखाया, तुम्हारे खुदा ने क्या किया। तो हजरत उमर अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह क्या ये सुनते हैं? तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते ये तुमसे ज्यादा सुनते हैं, कब्र में गए हैं लेकिन तुमसे ज्यादा सुनते हैं। तो ये मुर्दा जो होते हैं वो सुनते हैं। जैसे हदीस पाक में है कि तुम जब उनको दफना के जाते हो तुम्हारे पाँव की आहट भी सुनते हैं। तो आप अलैहिस्सलाम वहां से फिर तशरीफ लाए, फिर 3 दिन आपने वहां स्टे किया। और ये बात मदीने तक भी आप अलैहिस्सलाम ने हजरत मिकदाद को मदीने भेजा कि जाके इतला दें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें फतह अता फरमाई। और दूसरी तरफ जो भागे थे कुरैश, वहां मक्के जाके इतला दी, वहां कोहराम मच गया कि ये क्या हो गया, हमारे बड़े बड़े सरदार मारे गए, हम तो 3 गुना ज्यादा थे, ये क्या हो गया। लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं, और कुछ चिल्ला भी नहीं रहे, चीख भी नहीं रहे कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वहां कुछ मुसलमान भी रहते थे। वो लोग हम पर हंसेंगे, तो अंदर के अंदर ही वो जलते रहे। और इधर मुसलमानों को अल्लाह ने बड़ी फतह दी और जाके मदीने में बताया, वो खुशी से वहां से मदीने से लोग खुशी से निकल के रोहा के मकाम तक आ गए। रोहा का मकाम काफी दूर है। अभी कोई लिखेंगे ना मकाम रोहा, मदीना मकाम रोहा, तो काफी दूर है, मेरे ख्याल में 40 किलोमीटर तो होगा मेरे ख्याल में। वहां तक आए वो मकाम, जब आप जाएंगे ना बदर की जियारत के लिए, बस पर अगर जाएंगे, जो वहाँ जो बसें जाती हैं, तो वहां फिर आपको मकाम रोहा तक ले जाएंगे। पहले मकाम रोहा, पहला स्टॉप मकाम रोहा करेंगे। वहां जो है एक कुआं है जहाँ आप अलैहिस्सलाम ने पानी पिया था, आपने स्टे किया था,
साहबा आए थे, वहां पे अभी तक वो एक उन्होंने कुएं में मोटर लगाई हुई, वहां से पानी निकलता है, मुसलमान उस पानी से पीते हैं, और वहां जाके ये पहले हम जियारत ये मकाम रोहा पर करते हैं। तो साहबा यहाँ तक आए, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि 81 किलोमीटर। 81 किलोमीटर, हाँ जी, ये मकाम रोहा जो है मदीने से उस तरफ है। तो आप अलैहिस्सलाम पे 3 दिन के बाद आप अलैहिस्सलाम वापस आए, फरमाया जो कैदियों को भी आराम से ले आओ, लेकिन किसी ने कैदियों के साथ कोई ज्यादती नहीं करनी, इनको खाना भी पूरा देना है और इनको आराम से लाना है। तो एक कैदी कहता है कि मुझे शर्मिंदगी होती थी कि जो जिनकी मैं कैद में होता था वो मुझे रोटी देते थे और खुद वो खजूरें खाते थे, यानी सूखी खजूरें खा लेते थे, गुजारा कर लेते थे, हमें रोटी देते थे। इतना कैदियों का वो ख्याल करते थे। तो जब ये कैदी आप अलैहिस्सलाम पहले मदीने में आए, तशरीफ लाए, फिर जो आपका इस्तेकबाल हुआ, जो अल्लाह ने आपको इज्जत अता फरमाई, वो सारे जहां ने देखी, और कुफार जो मुशरिक थे जो वहां इर्द गिर्द रहते थे, उनके दिलों में धाक बैठ कि अल्लाह ने किस तरह मुसलमानों को फतह अता फरमाई है। 313 मुसलमान और वहां कहाँ 9.5 से करीब। तो अब उसके बाद 2-3 दिन के बाद जो है वो कैदियों को भी मदीने लाया गया। अब उसके बाद इस बात पे जो है वो बहस हो रही है कि इनके साथ क्या किया जाए, इन कैदियों के साथ मामला क्या होना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि ये कैदी इनको फिदिया देके छोड़ दिया जाए, मुसलमान हो जाएंगे, कोई हालात बेहतर हो जाएंगे। तो हजरत उमर ने कहा कि इनको जो कैदियों का कोई रिश्तेदार है ना उनको कत्ल करें, मेरे जो कोई कजन है तो मैं उनको कत्ल करूंगा, हजरत अली का भाई है वो कैद में वो उनको कत्ल करें, नबी अलैहिस्सलाम के चचा अब्बास थे, जो जिसके साथी जो करीबी रिश्तेदार है उनको कत्ल कर दे। ये अल्लाह के नबी के साथ लड़ने आए हैं, इनसे फिदिया लेके क्या करना है। तो आप अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो है वो राय मान ली कि ठीक है इनसे हम फिदिया लेंगे। फिर उनके फिदिया तय हुआ कि फिदिया आपने देना कितना है। कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास कुछ नहीं था, उनको कहा कि आप जो है 10 बच्चों को पढ़ा लें। हज़रत ज़ैद बिन साबित, ये एक और साहबी के बारे में आता है कि वो इसी वजह से पढ़ गए थे, कुछ 10 बच्चों को पढ़ा लें। 1-2 शायर था, उनको आप अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया। उतबा बिन शैबा जो था, हाँ ये एक ना उतबा था, उकबा बिन अबी मुईत, उसको वो भी कैदी में शामिल था, लेकिन वो शरारत कर रहा था, उसको रास्ते में मार दिया गया। तो हजरत अब्बास थे, ठीक है, और दीगर थे, तो उनको कहा कि आप फिदिया दें। तो अब्बास ने कहा कि मेरे पास तो है ही नहीं, मैं क्या फिदिया दूंगा। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तुम जब घर से निकले थे ना, तुमने सोना अपनी ज़ौजा जो मेरी चची उम्मुल फजल को दे के आए थे, और तुमने ये कहा था कि अगर मैं मारा जाऊं तो ये सोना है ना, इतना उबैदुल्लाह को देना, इतना अब्दुल्लाह बिन उमर को देना, इतना फजल को देना। तुमने अपने बेटों के नाम इतना सोना करके आए थे। ये किताबों में लिखा है, ज़ादुल माद जो सीरत की किताबें। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आप तो सारा कुछ जानते हैं, अल्लाह ने आपको बता दिया, अब मैं मुसलमान होता हूँ। फरमाया मुसलमान हो जाओ ठीक है, लेकिन फिदिया तुम्हें देना पड़ेगा। तो फिदिया फिर उनका 4 गुना लिया गया, क्योंकि उनसे फिदिया हजरत अली के भाई का भी लिया गया, 2-3 और बंदों का लिया गया। तो बाकियों से जिनके पास फिदिया नहीं था, फिर उनके पास जो अबुल आस थे, उनके बारे में आता है, जो आप अलैहिस्सलाम के अबुल आस, आप अलैहिस्सलाम की जो बेटी थी ज़ैनब, उसके शौहर थे। तो उनसे जब बात की गई तो उन्होंने फिर जो मक्के से अपना ज़ाहिर कुछ सामान मंगाया, तो उसमें कुछ हार थे हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के, जो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी ज़ैनब को दिए थे। तो वो फिदिये के तौर पर आए, तो आप अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। तो काम तो ज़ाहिर है सबको बराबर करना था, तो ये फिदिया लेके कुछ को छोड़ दिया गया, कुछ को साथ रिहाई हुई। एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए, तो आप अलैहिस्सलाम की आंखों में से आंसू, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंखों में से आंसू। अर्ज की या रसूलल्लाह क्या है, आप क्यों रो रहे हैं, मुझे बताएं, मैं भी रोऊं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि ए महबूब, इनको छोड़ना नहीं था, फिदिया अल्लाह आपको वसअत देगा, फिदिया लेके करना क्या था, इनको मारना था। तो चले अब आपका फैसला हो गया। ये सूरह अतौबा की सेकंड लास्ट आयतों में ये चीजें हैं आप अलैहिस्सलाम ने। तो ये एक तकदीर में ऐसा था, तो हज़रत उमर ने कहा था कि इनको मार दिया जाए। बहरहाल ये फिदिया हुआ। उसके बाद मुसलमानों को पूरे इलाके में अल्लाह ने वो इज्जत दी, और फिर कुफार
जो उनको अल्लाह ने ज़लील और रुस्वा किया। तो ये मुख्तसर जो हालात थे मैंने जंगे बदर के आपसे गुजारिश की है, और इसमें से कोई चीज़ अगर पूछना चाहें जो मेरे इल्म में होगी तो ज़रूर मैं इंशाल्लाह आपसे अर्ज करूंगा कि ये हक व बातिल का मार्का था, इसको फुरकान कहते हैं, फर्क हक व बातिल का फर्क, ठीक है। तो अल्लाह ने ऐसी मदद की, मुसलमानों की हिम्मत भी थी कि इतने बड़े लश्कर से इतने बड़े उनके पास जनाब अली घोड़े थे, उनके पास 600 के करीब घोड़े थे, ज़िरहें थी उनके पास। आप देख लें रोजाना वो एक दिन वो 9 ऊंट ज़िबह कर रहे हैं और दूसरे दिन वो 10 ऊंट ज़िबह कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। और मुसलमानों के पास कुल 70 ऊंट हैं जिन पर इनके पास सवारी भी पूरी नहीं हो रही। तो ये चीजें अल्लाह ने फिर कुरान पाक में फरमाया वलक़द नासरकुमुल्लाह बिबदरिन व अंतुम अदिल्ला, और तुम्हारी मदद कर चुका अल्लाह बदर की लड़ाई में और तुम बेमकदूर थे, यानी तुम्हारे पास नहीं था इतना माल, तो अल्लाह ने तुम्हारी क्या की, बदर में मदद की। तो ये बदर का मार्का बहुत अजीम मार्का, इसे कहते हैं बदर कुबरा, यानी कि आप जब किताबें पढ़ेंगे ना सीरत की किताबें में, तो इससे छोटे छोटे भी जो गज़वात हुए हैं तो उस हिसाब से उनको जो है वो इस गज़वे को गज़वा बदर कुबरा कहते हैं। आप किताबों में जब पढ़ेंगे गज़वा बदर कुबरा यानी बड़ा गज़वा, बाकी छोटे छोटे गज़वे हुए हैं, ये बहुत बड़ा तारीखी गज़वा है, हक व बातिल की जंग है। तो और ये जंग लड़ना कोई आसान नहीं था, इतने लोग सामने, अपने पास वो माल भी नहीं, दौलत भी नहीं, उसके बाद मुसलमान जो है इतनी दिलेरी के साथ लड़ना, कमजोरी भी हुई, ये भी देखना है। लेकिन अल्लाह ने फिर उनको ऐसा दिल बांधा कि उनको गुनूदगी आ गई और फिर उनके दिल मजबूत हो गए। जब देखे ना मुश्किल हालत में तो इंसान को नींद नहीं आती, लेकिन उनको इद युग़श्शिकुमुन्नास अमनतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाइ मा, ये दूसरा रुकू है सूरह अनफाल का, कि इद युग़श्शिकुमुन्नास के अल्लाह ने तुम्हें गशी डाल दी है कि तुम गुनूदगी में चले गए। व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाइ मा व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाइ मा, तो अल्लाह ने आसमान से तुम पर पानी नाज़िल किया, बारिश भी आ गई, सुकून भी हो गया। तो अल्लाह की तरफ से मदद थी, वो अल्लाह के लिए निकले थे, तो अल्लाह ने इस तरह मुसलमानों की मदद फरमाया। जी गजाली साहब, ये ग़ज़वा बदर, तवीले की बिला, इसके अलावा ज़कात और रोज़े की फर्सियत, सारे वाक़यात 2 हिजरी में हुए हैं। हाँ ये 2 हिजरी में हुए सारे, रोज़ा और ज़कात दोनों 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुए हैं। और ज़कात भी 2 हिजरी में हुई है। जी, तो आज का सबक ये आपने याद रखना है, ठीक है, और इसका खुलासा आपने बताना है। इसको जब अब आप इंशाल्लाह जब इसको सीरत में पढ़ेंगे तो अब इंशाल्लाह इसको समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। जब सीरत पढ़ेंगे या सीरत की किताबें देखेंगे या कि सुनेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको बड़ी इसमें आसानी हो जाएगी। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में हम इससे अगला तीसरी और चौथी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, तीसरी हिजरी और चौथी हिजरी, ठीक है, ताकि फिर हम 2-2 हिजरियाँ पढ़ के तो इंशाल्लाह फिर हम जो है ना 2-2 साल, अब अगर ये हमारी 4 क्लास है उसमें इंशाल्लाह हम इसको मुकम्मल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि हमें कितना समझ आया और इसमें क्या मज़ीद होना चाहिए या क्या बेहतर हुआ, तो ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे इंशाअल्लाह ज़रूर। जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।